सबको कुंडलिनी अवेकन करना है, ये अवेकन हो सकता है क्या? हेलो चैतन्य, नमस्ते. Namaste. It is International Yoga Day. Most people when they're in their 20s or 30s, they want to hit the gym. As a 33-year-old today, what would be recommended? Gym or yoga? Form of exercises are created according to the but कौन से लोग जिम कर रहे हैं? भी मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि जिम कर रहे हैं, क्रॉसफिट कर रहे हैं, लेकिन बॉडी में स्टिफनेस इतना बढ़ रहा है. यू कैन लिफ्ट 100 kgs ऑफ वेट बट यू कांट इवन टच योर टोज. ऐसे स्ट्रेन का फायदा क्या है? You feel like a lot of emotions are cropping up. Out. And then when you are lying into Shavasana, suddenly everything just hits you. शरीर से लेके आत्मा तक का प्रवास वो योग है. After the Yoga Nidra, after the Trata, people will start crying. How does the asana have a correlation with my emotions? What changes did yoga bring in your life? From the mental peace to the financial stability, it had provided me everything. I think under the name of consistency, the internet is always telling you be consistent, every day hit the gym, do this, do that. People are not understanding what is their routine like before they even get consistent. मैंने ये देखा है कि अरे मैं योग करता हूँ, मैं जिम करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ और मैं रात में बहुत दारू भी पीऊंगा, मैं नॉनवेज भी खाऊंगा. इट इज पनिशमेंट फॉर योर बॉडी. प्रॉमिसिंग यंग एथलीट्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड अदर थिंग्स. कि ओवरडू भी मत करो. जितना आप वर्कआउट करते हो, रेस्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. प्राणायाम इट इज नॉट फॉर फिजिकल बेनिफिट्स, सो इट वर्क्स ऑन योर चक्रास, कुंडलिनीज, एंड फिजिकली अगर आप तैयार नहीं हो तो इट इज गोइंग टू बर्न यू फ्रॉम इनसाइड. इट इज लाइक प्लेइंग विद द फायर. Hey you, welcome to another exciting episode on Roar with Sneha. I am your host Sneha Desai, and Roar is a talk show of making your relationships better. First with yourself and then with people around you. I promise you that every episode on Roar is about making transformations in your life. And before we go ahead with this episode, I request each one of you to hit that subscribe button because that helps us build a better community and grow as a channel. आज का episode is all about योग because it is International Yoga Day. Let me tell you, वो कहते हैं ना कि यार योग आने से तुम्हारी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है. It is absolutely true. It's been a year that I started my yoga journey and it has been the best decision ever. I think most of us के लिए योग is all about flexibility, शायद से सूर्य नमस्कार, क्योंकि हमने यही सीखा है. मुझे भी इतना ही पता था about योग, but I think there is so much more to the world of yoga. It is not only about asanas and pranayama. We are going to be sitting down with my yoga guru and going to be asking questions that we all have usually. कि जिम करना चाहिए या योग करना चाहिए? Can yoga really help you heal? Can it help you manifest the life you really want? What should you be eating? Should you be doing pranayama? What is this buzz about Kundalini? Everything is going to be answered in this episode. This episode could be for beginners who want to start their yoga journey. It could be for spiritual seekers or fitness enthusiasts. Grab that cup of chai and get ready to take down notes because this episode is an exciting one. Let's roar. Hello Chaitanya, namaste. Namaste. Welcome again on Roar with Sneha. And it is International Yoga Day. So, of course, I had to get you on this podcast again. Cute. Let me tell everybody who's watching this episode that Chaitanya has been my yoga guru, and it's been a year I've been doing Yes. yoga with you. And one thing that changed is I stopped calling yoga. I stopped saying yoga and I started saying yoga. That was the first thing you corrected me, I remember. That's the And and it's been a beautiful journey. Manje, I have been very inconsistent with classes. I know that. That's a complaint that keeps coming from you. But more importantly, I am still seeing changes in my life because of this. Whatever I have done so far, I have seen beautiful changes in my life. And I would say that, yoga, whenever I see somebody doing yoga, it looks very easy, especially when you do it, you make it look so easy. And when I try to do it, I understand the kitty. Like I am just struggling to do that asana. So, yeah. It Anyway, comes with the practice. So, anyway, welcome. That is my introduction about Chaitanya. So, Chaitanya, my first question, I think everybody knows that yoga works on the mind, body, and soul, of course. But I want to know that how has it changed your life? Like so many people are talking about yoga these days. Everybody is like, every celebrity is promoting yoga. Everyone is saying that, how important yoga is. But today I have you as my guru. I want to ask you that what changes did yoga bring in your life? It changed everything Hmm. from who I am and from who I was till who I am now.
So there was a time I had a teared ligament. This is how it started. I Mm. had a teared ligaments and doctor said, no, we have to operate it. And I was, no, I'll not do it. It doesn't matter. कितने डिग्री का टेयर है, I'll try and heal myself. Okay. And then I started practicing yoga slowly. I started building strength. I also have practiced calisthenics. So I am a calisthenic athlete as well. And I started doing yoga parallelly. I kept doing it after the period of year and so on. And I understood that it is changing me everything. See, I have seen, uh, I was in a bad patch of my life. So I would say कि मेरे जितना फेलियर किसी ने नहीं देखा है आज तक. 2003 से 2017-18 तक 15 साल का बड़ा बैड पैच था. लेकिन योग ऐसी चीज़ है जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा. It was always been there. So first of all, Guru Krupa. It happened because of Guru Krupa. And उनके वजह से मेरे ज़िंदगी में योग आया. And I started practicing it. कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, I used to stay positive. It's because of योग. कभी हारने नहीं दिया, कभी थकने नहीं दिया, कभी रुकने नहीं दिया. ये योग शास्त्र का महात्म्य है. And again, as I said, कि it not just a mere exercise. It will change you from inside out. So it works on your muscular system, then your mind, your brain, and again on your spirit. Okay. So शरीर से लेके आत्मा तक का प्रवास है, वो योग है. And whatever I know about your stories, I know that there was a time where you were even struggling to pay your rent Of course. because हाँ, सो मैंने एक संभाजी बाग में अपने और वर्तक बाग में एक चबूतरे पे क्लास लेना शुरू किया था और पकड़ के लाता था लोगों को कि आओ सीखो. और बिकॉज आई वांटेड टू टेस्ट माई सेल्फ कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं भी है. ऑफ कोर्स आई हैड सम बुक्स फॉर द रेफरेंस एंड अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गुरु कृपा which guided me through this journey. So after that, I went to Rishikesh and had a proper certification and at the degree. And then I started teaching on the Veta Tekdi. And this is how I started growing up. After that, I hired a proper studio and then it started all that way. But yes, मैंने वो भी दिन देखे कि रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, करेंगे कैसे. So I had that question, but I was not negative. ये पता नहीं था कैसे करेंगे, लेकिन ये ज़रूर पता था कि आज न कल होगा. So it gave me name and fame, respect, everything. So I own my own house now at the Prabhat Road in Pune just because of yoga. So from the mental peace to the financial stability, it had provided me everything. सो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात कही आपने कि मेंटल पीस से लेके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सब कुछ आपने पाया थ्रू योग बिकॉज सारे लोग जो बात करते हैं इट्स मोस्टली टू डू विद फिजिकल बेनिफिट्स एंड लेट मी शेयर दिस विथ यू कि I started my yoga journey in terms of not like that, but I must be in my school. तब जाके I got introduced to Surya Namaskar, which I think all the kids get introduced to when they are in their school. And मेरे लिए योग was only Surya Namaskar and doing stretching. I think everybody says कि अगर आपको योग करना है तो you have to, it's about like आप stretches कर रहे हो. तो I want to know that how is yoga beyond just Surya Namaskar and just stretching? It is not just doing Surya Namaskar, 108 Surya Namaskar. So it is way of life. Try to understand this कि yoga works on your, not just your anatomy, as I said, it works on your mind, body and the spirit. So first benefit you get, if you talk physically, कि mind and body connection, okay, the muscle building. And the most important thing, the peace of mind. It doesn't mean कि आप योग कर रहे हो तो अभी संन्यास अवस्था आ जाएगी और आप कहीं निकल जाओगे. I'm married, okay, I'm still living in my home and I'm still pursuing my passion. So ये भी हो सकता है कि यहाँ पे रह के you can feel detached to everything, right? सब में है और कहीं भी नहीं है. ये जो अवस्था है मन की, ये सिर्फ योग से पाई जा सकती है. ठीक है. और बाकी फिजिकल बेनिफिट्स तो पता है. सो आई विल गिव एन एग्जांपल कि योग जो है वो it also works on your internal organs, not only on external muscles. So let us say Paschimottanasana, which everybody hates to do it because it takes mobility and flexibility both. So suppose I'm bending forward, so my thighs, I'm using my own body as an instrument, right? I don't have anything. I'm using my own body as a resistance, as an instrument, as a weight. So it is putting pressure on my abdomen region,
right? So as soon as I get into asana, it stops blood supply in my abdominal region, and I keep breathing, keep breathing. So as soon as I get out of the asana, the first priority of my brain is to supply the oxygenated blood to that region. This is how your internal health of your internal organs improves. So, and you will not find any form of exercise which works this way. Okay. Huh. Very interesting. So it works on your respiratory system similar way. You have to practice back bends. Okay, it will work on your digestive system and so on. Okay. So, one very common question that people have, or even what people talk about, is that yoga is to be practiced after the age of 40. Like, I see old people doing yoga, to be very honest. Okay, like, this was the first time when I came to your class, and I was like, okay, you can do yoga at this age and still, like, kill it. But I think most people, when they're in their 20s or 30s, they want to hit the gym. So, even when I was talking to my friends, and they were like, maybe you should join the gym if you want a toned body. And so I want to know, what is it like as a 33-year-old today? What would be recommended? I think Gym or yoga? it should be combination of both. But Okay. if you ask me, it should be yoga only, because as I said, it works on your internal health as well, mental, physical, and spiritual. So form of exercises are created according to the geography. I'm not saying doing gym is bad, but try to understand this कि कौन से लोग जिम कर रहे हैं जहाँ पे स्नोफॉल है. ओके, सो दे हैव टू लिफ्ट वेट, दे हैव टू पंप देयर हार्ट, दे हैव टू ईट मीट. ओके, भारत जैसे देश में अगर आप इतना सब कुछ करोगे, इट इज नॉट गोना वर्क. Why? You'll burn yourself. You're already living in 35 degrees, 40 degrees, 30 to 40 degrees. There is no need to pump your heart like that. I'm not saying cardio is bad or gym is bad. Okay, do it in a moderate way. So if you see the yoga or the any dancing style, any dance style which is performed in India, in Bharat, they are all slow moving. There are no fast movements in that. Yeah. Okay, so it depends upon the geography where you are. This is how the form of exercises are built. Mm. Okay, and when it comes to yoga, see, I focus more on the holding of the asana. You hold the one asana for 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, or maybe more. Okay, so and what do you do in gym? You will keep moving your arms, you will keep doing reps. Okay, so it is a explosive growth of your muscles, but it is not sustainable. As soon as you stop hitting the gym, what's going to happen? Everybody know. Yeah. Okay. Yeah, I know people who've like put on weight after they've stopped gymming. Yes, and the muscle density which you get through the yoga, I will not say it is permanent, but it will क्या बोलते हैं उसे कि longer duration के लिए वो आप sustain कर पाओगे. Okay. अब 1 साल practice नहीं भी करते हो, it doesn't mean कि your health is gonna go downwards. Okay. हाँ. Like, I'll tell you, मैंने भी एक बार जब 1 साल के लिए जिम किया था, and I think when I came for the first class of yoga, I was sweating in like 10 minutes, okay? And it was slow, okay? It was very slow. And people think that you're not going to sweat, you're not going to lose weight because of that. And you need to go to the gym, you need to pick up those weight to sweat. But I wouldn't sweat in the gym. But in fact, in a yoga class in 10 minutes, I'm actually sweating. It must be air conditioned gym, which you are. No, you are going. still in the gym, I don't know, even if you're doing so many exercises, but those 10 minutes of slow movements, that is what actually made me think. Slow and guided movements, Guided. I would say. Yeah. And proper form and technique is maintained throughout the poses, whether it is Surya Namaskar or the Chandra Namaskar or any asana that you practice, the proper form of the asana is maintained, and we focus on maximum muscle engagement. Okay, this is why you sweat. It's as simple as that, because optimum consumption होता है, optimum engagement होता है muscles का. Okay. When you are into, let us say, for a Virabhadrasana, your legs are working in a different way, your spine is moving in a different way, the neck is moving in a different way. Your energy inside your body is moving in 3 different way. It is moving in your front leg, it is moving in your back leg, and you just have to be aware of that energy. That's it. As I said, it works on your mental conditions as well. Okay. It works on your mind as well. Okay. Huh? And coming to the gym part, one more question, that they say that weights for muscle development, you need to pick up weights. So then I don't know how in yoga you're not picking up any weights. You are using your
your own body as a resistance, right? Which is the most difficult task if you must have seen. Yeah. Yeah, lifting weight is easy, but lifting yourself is really difficult. Yeah. It will improve your muscle density slowly but gradually. In gym, muscle density does improve, but it is in explosive way. Okay, so yoga also focus on the bone to muscle connection. You're using self body weight as a resistance, so your muscle fibers are moving more and more, they're working more. Hmm. Okay, it's not going in a gym, it's not like a going in a gym, because you are working only on a specific muscle group. आज bicep किया, chest किया, खत्म. When it comes to yoga, it's a full body drill. No muscle is left untouched, and you are doing it every day for 1 hour. And again, I'll say this कि 1 घंटे जाओ और योग करो, ऐसा नहीं होता. So again, you have to follow proper diet. You have to follow, yeah, again, niyamas. So there is no mobility issue if you practice yoga. But when it comes to gym, okay, 45 minutes, 1 घंटा आप जिम करोगे, लेकिन what about your mobility and flexibility? मसल का कंडीशनिंग ही नहीं है. दे विल जस्ट पटापट वेट लिफ्ट करो और निकल जाओ, बॉडी पंप करो, अच्छा लगता है, निकल जाओ. ओके, सो व्हाट अबाउट प्रॉपर स्ट्रेचिंग? जो भी मसल ग्रुप पे आप काम करते हो, उसको उसका स्ट्रेचिंग भी होना चाहिए प्रॉपर वे में, ठीक है? वो भी अंडर एबल गाइडेंस. आपने आपने स्ट्रेच किया, ऐसे नहीं हो सकता. प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक हैज़ टू बी मेंटेन. और मैंने देखा है, अभी मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि जिम कर रहे हैं, क्रॉसफिट कर रहे हैं, लेकिन बॉडी में स्टिफनेस इतना बढ़ रहा है. Okay, you can lift 100 kgs of weight, but you can't even touch your toes. So, Yeah. ऐसे स्ट्रेंथ का फायदा क्या है? ये मेरा कहना है. आप स्क्वाट कर सकते हो पूरा, लेकिन फ्रंट स्प्लिट नहीं कर सकते. ठीक है, ओवरहेड्स लिफ्ट कर सकते हो वेट, बट यू कांट ट्विस्ट प्रॉपरली. सो स्टिफनेस बढ़ रहा है, स्टिफनेस की वजह से अगेन साइटिका और हाथों में पैरों में नमनेस आना, नेक स्टिफ होना, ये सब प्रॉब्लम्स आ रहा है अभी. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ डूइंग जिम. आई एम नॉट सेइंग कि ये जिम के वजह से हो रहा है. आई एम सेइंग कि जिम के बाद प्रॉपर कंडीशनिंग एंड स्ट्रेचिंग ना करने के वजह से ये सब हो रहा है. Yeah. I think people are focusing on the Only on the first part. pumping their body. The 45 minutes where they're going to look good. Like you're going to the gym, you're doing that part, and the stretching part is compromised. Because people, Always compromise. yeah. Always compromise. Yeah. So they never stretch. They never do anything related to mobility, agility training. कुछ नहीं करेंगे, बस जिम हिट करो और खत्म कर दो. Yeah. ऐसे नहीं होता. One more thing, when I joined your मतलब class, तो एक तो है कि there is a flow to the asanas 100%, but you focus a lot on alignment. You will make sure that the alignment is right. And second, holding of asan. You emphasize on the fact कि आसन सिर्फ करो मत, पर उसको hold करो. So what is the importance when I'm holding an asan? What is exactly happening in my body? First of all, alignments. I'll talk about the alignments of asana. As I always say, ki, maximum muscle engagement, and that too in a proper way. Let's say in lunges, if knee ankle is not in straight line, it can seriously damage your knees. Okay, so in back bends, if your thoracic spine is not properly engaged, your core muscle is not properly engaged, will definitely end up with lower back pain. So ऐसे हुआ भी है कि सारे अच्छे एडवांस प्रैक्टिशनर्स, they ended up with lower back pain and coming to me कि अरे नहीं, इतने अच्छी प्रैक्टिस है लेकिन फिर भी आर्म इंजरी क्यों हो रही है, ये इंजरी क्यों हो रही है. सो दैट्स द थिंग एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ऐसे भी यूट्यूब पे देखिए, जो आजकल हो रहा है कि यूट्यूब पे देखेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और चलो योग करते हैं, ऐसे नहीं होता. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके शरीर की तासीर क्या है. सो वाता पित्त कफ, these are 3 doshas. So you need to understand also कि what kind of asan practice is suitable for you. Okay. What kind of breathing technique is suitable for you. So let's say कि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है और सूर्य नमस्कार करवा रहा हूँ. This is not how it works. एसिडिटी और बढ़ेगी because it works on your सूर्य नाड़ी. Okay, so you need to practice. I'm not saying कि सूर्य नमस्कार करना बिल्कुल गलत है. Practice it in a moderate way and under proper guidance. Okay, try to understand how this anatomy works and then start working towards asan, surya namaskar and pranayam and the other things. So chandra namaskar will work on your left nostril, the chandra or the mana. So शांति चाहिए तो आई वुड सजेस्ट चंद्र नमस्कार करो. सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो एंजाइटी या डिप्रेशन वाले लोग आते हैं, उनसे चंद्र नमस्कार
ज़्यादा करवाता हूँ, दे फील बेटर, सो मन शांति मिलती। लेकिन ऐसा कोई है विद्यार्थी, उसमें एग्रेशन की ज़रूरत है टुवर्ड्स हिज लाइफ। एग्रेशन यानी ऐसा एग्रेशन नहीं, वायलेंस वाला एग्रेशन नहीं, कि नीड्स टू बी एक्टिव, तो सूर्य नमस्कार कराने की ज़रूरत है, वो भी इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। और ऐसे नहीं कि आज उठा और चलो 108 सूर्य नमस्कार कर लिए, नहीं, स्टार्ट विथ 2 3 4, दिस इज हाउ यू ग्रो, ओके। आई मतलब क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे चंद्र नमस्कार ये होता है ये पता चला, लाइक आई थिंक एवरीबडी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार। एंड मोस्ट ऑफ अस मतलब वही इंट्रोड्यूस किया है स्कूल में। सो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर कि सबको एक ही चीज़ पता है। काफ़ी मिसिंग लिंक्स है विच पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ व्हेन इट कम्स टू डूइंग योग। दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, दे डोंट इवन वांट टू आस्क। या ये मैंने देखा है कि ये प्रेजुडाइज्ड है कि हमें सब आता है, योग है ना, हम कर लेंगे। अगर हाई बीपी वाला पेशेंट है और शीर्षासन करेगा, डेफिनेटली अंधा हो जाएगा या फिर और कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। सो ऐसे नहीं होता। सो हाई बीपी है तो उसको और मॉडरेट वे में आसन प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। आई हैव ऑब्जर्व दिस ऑल्सो कि ड्यूरिंग क्लास बहुत सारे आसन्स में यू फील लाइक अ लॉट ऑफ इमोशंस आर cropping up. आउट, And then when you are lying into Shavasana, suddenly everything just hits you. Yeah. So there are days where you are very calm after a class. There are days where you feel like a lot of emotions are surfacing. So how does the asana have a correlation with my emotions there? हाँ, सो स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स वर्क एज अ शॉक absorber for the specific emotions. Let's say if you have impact of negative emotions over you, your inner thighs are going to get stiffer. Okay, if you are Okay. angry and you are unable to vent it out, your jaws are going to get stiff. Okay, you are overthinker and you are not able to vent it out, your neck is going to get stiff. So external muscle works as a shock absorber. So bending and twisting your body in a specific way, as we do in asan, will release that all emotional baggage that you have been carrying, and not just of now. It may also relieve the stress from the past. Oh. So most of the time you must have seen ki after the yoga nidra, after the tratak, people will start crying. After the chandra vedan or the full hour pranayam practice, people will start crying because that emotional turbulence they have been through. You'll be able to release that energy through the yoga, okay, in a peaceful way. ऐसे नहीं किसी पे चिल्लाया, किसी पे ये किया, in a peaceful way. Okay, you will be able to even channelize that negative energy कि okay, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, I'll ground it now. Okay, I'll let go. This is how it works. Yeah. So what you said was कि अपने जो muscles है वो almost like सब emotions को store कर रहा है non-stop. And then it is kind of showing up with pains and aches in our Yeah. body somewhere. This is how we assess our patient. जो भी थेरेपी के लिए आते हैं उसका क्या स्टिफ है, नेक्स्ट स्टिफ है, कहाँ से आ रहा है, ओके, ओवरथिंकर है, काम का प्रेशर है, तो नेक्स्ट स्टिफ है। और कॉमन इश्यूज साइटिका, इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद द नेक स्टिफनेस, ओके, योर नेक विल गेट स्टिफर, देन योर back muscles, your shoulder blades, your trapezius muscles will get stiffer, your lower back muscles. This is how it starts. So your body is telling you, do something about this, do something about this. If you don't do anything about it, the problem will start rising. Okay, so external muscle, if the external muscle stops working, as I said, it works as a shock absorber, okay, for the impacts. If you don't do anything about it, it is going to turn in, as in it will impact your heart, it will impact your kidneys, it will impact your liver. So external muscle में जब भी problem है, go meet a doctor, go meet a vaidya and have a proper remedy with the help of yoga and with the help of medicine. You also mentioned Tratak right now when you were talking. So I used to feel that yoga is only about physical asanas. So ये जो छोटी छोटी चीजें like Tratak, I think Jal Niti also was something I got introduced through you. Yaman. What are these? How are these a part of yoga actually? So first यम नियम, यम नियमी देह, बहुत सुंदर होवी है मराठी में, यम नियमी देह शोधून, आसनी स्थैर्य पाहून, प्राणायामी दोष शोषून, पिंड शोधन. पिंड शोधन होत असे, पिंड यानी ये देह, ठीक है, यम नियम. सो यम में आएगा सत्य, अस्तेय, अहिंसा, परिग्रह और ब्रह्मचर्य. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मचर्य. सो उसके बाद आएगा नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय वर प्रणिधानानि नियमः.
So सबसे पहले आएगा cleansing of the mind and then comes the cleansing of the body. नहीं, I didn't understand actually मेरे सिर से ऊपर. Okay. What does yum and niyam mean? So yama, so satya, asteya, aparigraha, ahimsa और brahmacharya. So brahmacharya about the celibacy until you get married. If you are not going to marry, it's really important to for you that you maintain your brahmacharya. Okay. Okay. Hmm. Then satya, So these are all the yums. yam. Okay. Okay. Satya, सत्य, अस्तेय, Teya, अहिंसा, Ahimsa, ब्रह्मचर्य and अपरिग्रह. सीक्वेंस में भी Yapari. बैक एंड फोर्थ Okay. अपरिग्रह. किसी से कुछ मांगना नहीं है. सत्य हमेशा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ Truth. Yeah. इवन इफ इट इज अगेंस्ट यू. मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि खुद की वकील नहीं करनी है. बिकम द जज. ओके कि मैं गलत हूँ तो गलत हूँ. ये एक्सेप्टेंस भी आएगा आप में कि ठीक है. आपसे अपने से छोटा भी है तो विल से सॉरी. ओके आई वाज रॉन्ग. Okay. सत्य. ठीक है. उसके बाद में चोरी नहीं करना. That She is was अस्तेय. Teya. हाँ. Okay. देन अहिंसा. ठीक है. बिना वजह किसी को तकलीफ मत दो. अहिंसा एज इन ये नहीं कि कोई मारने आया और आप कुछ नहीं करोगे. सेल्फ डिफेंस इज इम्पोर्टेंट. Important. Yeah. अपरिग्रह किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं करना. सो इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ माइंड. ओके. देन कम्स द फिजिकल क्लींजिंग. दिस वाज अ क्लींजिंग फॉर योर माइंड एंड देन कम्स द फिजिकल क्लींजिंग Okay. जो शौच में आएगा. So the yum is these 5 things. These five. And niyam, as you said, was शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः. शौच फिजिकल क्लींजिंग दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो नेति, उसमें बाद बस्ती, कपालभाति. सो बहुत लोगों का मानना है कि कपालभाति इज प्राणायाम. कपालभाति इज नॉट अ प्राणायाम. कपालभाति इज अ शुद्धि क्रिया. ओके. देन आएगी धौती एंड शंख प्रक्षालन. शंख प्रक्षालन इज अ क्लींजिंग ऑफ योर गट. okay. Okay. देन बस्ती, मात्रा बस्ती भी कहते हैं, जो इट्स काइंड ऑफ एनिमा ओनली. उसके बाद में अपनी नेति कपाल शोधिनी चाहिए दिव्य दृष्टि प्रदायिनी. उसके बारे में ऐसा वर्णन है कि कपाल शोधिनी इट विल क्लियर योर साइनसेस एंड दिव्य दृष्टि. एंड नॉट से कि दिव्य दृष्टि थर्ड आई ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा. नहीं, आपको चश्मा नहीं लगेगा. दृष्टि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपकी दृष्टि अच्छी रहेगी. विल टॉक अबाउट द फिजिकल बेनिफिट्स. Okay. So yam and niyam, and then comes the asana. Okay, so everybody is jumping directly either on the asana or directly on the pranayam. No, you have to go through these phases first. Okay, let's say किसी को कुछ प्रॉब्लम है, आप क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ नहीं पाओगे, वो कैसे करेगा आसन प्रैक्टिस? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? So start with some things, few basic things. Start with the So cleansing. first, if you clean. You might need abhyanga, the massage, Okay. which also comes from the panchakarma and ayurveda and again योग. So अभ्यंग की ज़रूरत है. उसके बाद में उसमें और एक आता है रक्तमोक्षण. तो ब्लड निकालेंगे, जो अशुद्ध रक्त खून है वो निकालेंगे, रक्तमोक्षण है. फिर आएगा विरेचन आएगा. फिर आएगा वमन अपने अष्टांग योग में भी है, शुद्धि क्रिया में वमन. सो एसिडिटी का प्रॉब्लम जिनको है उनको हर 15 दिन में, 1 महीने में वमन कराया जाता है. ओके. सो द बस्ती, अभी ये ऋतुकाल चेंज हो रहा है. सो वी आर मूविंग फ्रॉम द समर्स टू द रेनी सीजन. तो बस्ती इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो बस्ती once in a 15 days, once in a month you have to. मतलब लेना ही चाहिए ऐसे नहीं है, लेकिन अगर if you think you need it, then have a proper consultation with your teacher, your doctor, and then you can have it. Okay. हाँ. So as you said कि very interesting, क्योंकि लोग आसन पे as you said jump करते हैं, but योग as you said is a lifestyle. तो पहले यम आते हैं, that is character building if I'm not wrong, and Yes. training of the Perfect. character building and training of the mind. Mind only. Where you're working. So brahmacharya is the most important thing Yeah. that you follow these days. Yeah. Okay. So you start from there and then you have cleansing activity. So tratak and all this comes into cleansing, Yes. which is very important. Cleansing of your eyes, you can say. So tratak is also known as purvavastha of samadhi. Okay. Okay, this is, so these are these kriyas and yama niyamas are made for the conditioning of your mind and body together. Okay. Let's say what will you do if you reach in the state of samadhi? Will you be able to understand what it exactly means? No. So dhire dhire will step up, right? First mentally, then physically, and then psychologically, and then spiritually. So this is how it goes. It is called Ashtanga Yoga.
उसमें 8 स्टेप्स दिए हैं, उसी को फॉलो करना है. यू डोंट डायरेक्टली जंप ऑन प्राणायाम, यू डोंट डायरेक्टली जंप ऑन आसन. ओके. So पहले you have to get your body prepared to even do the asan. So पहले cleansing ये सब Cleanse- करेंगे, which is a part of yam niyam. यम नियम. यस. Okay, so you're training your mind and body together to start doing the asan. आसन. Okay, Yes. and then you get to asans. Then you But I think most of us just do the as. So do the asan. nobody Also, knows the. Kriyas are all equally important, I think. So at least start performing Jalaneti every day, again under able guidance. YouTube पे देख के नहीं. Okay, so your teacher will decide whether you really need it. अगर साइनस का ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो विल स्टार्ट विथ घृतनस्य. सो अपना जो गाय का घी होता है 2 drops ऑफ घृत मीन्स घी इन नॉस्ट्रिल्स में छोड़ना है बस रात में. ऐसे 8-10 दिन 15 दिन, फिर उसके बाद धीरे धीरे जलनेति विल बी इंट्रोड्यूस्ड. एंड अगेन जलनेति उसमें सैंधव नमक जिसे बोलते हैं, काला नमक भी नहीं, सैंधव नमक वही होना चाहिए, नॉर्मल सॉल्ट नहीं. और विदाउट सॉल्ट तो बिल्कुल नहीं. आई हैव सीन ऐसे केसेस मैंने देखे कि सर हम डेली जलनेति करते हैं लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है. मैंने पूछा था कैसे करते हैं, तो बिना नमक के पानी के. सो नमक का ही पानी क्यों आना चाहिए उसमें? योर बॉडी विल नॉट एब्जॉर्ब इट. सो दिस मसल्स आर एब्जॉर्बेंट. इफ यू यूज अ नॉर्मल वाटर, स्विमिंग टैंक में जाने के बाद क्यों पेन होता है अंदर और क्यों सर्दी होती है, साइनस भर जाते हैं, बिकॉज योर बॉडी विल एब्जॉर्ब इट. And salt water, if salt water is used, even after an hour, you'll see while doing Adho Mukha Svanasana or Marjarasana, the water will fall out. वो बाहर आ जाएगा अपने आप. Okay. हाँ, इसीलिए वो सॉल्ट वाटर यूज होना चाहिए. So ये सब चीज़ें एक्चुअली लाइक पता ही नहीं है. एंड आज यू सेड कि यूट्यूब, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब को अपना गुरु बना लिया है. एंड आई माई सेल्फ ऑल्सो, आई थिंक इसके पहले भी जब मैंने योग प्रैक्टिस किया था, पीपल आर जस्ट फोकसिंग ऑन दी आसन सो मच दैट वी डोंट गेट टू, मतलब जो एक्चुअल पीछे का उसका क्या है, दैट गेटिंग योर बॉडी इवन प्रिपेयर्ड टू डू योग, उसका इम्पोर्टेंस बहुत कम है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दे आर परस्यूइंग योग और जिम आउट ऑफ एंजाइटी. मैंने ये भी देखा है. ओके. जी. एंग्जाइटी एज इन मतलब कि मुझे अभी बीमार नहीं पड़ना है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ. आई थिंक एंड टू लुक गुड. टू लुक गुड वो तो है, लेकिन हाँ मुझे बीमार नहीं पड़ना है. आई हैव सीन सच केसेस कि इतना वर्कआउट करेंगे, बॉडी ओवरबर्न हो रही है. प्रॉमिसिंग यंग एथलीट्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड अदर थिंग्स. कि ओवरडू भी मत करो. रेस्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. जितना आप वर्कआउट करते हो, रेस्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो शरीर को और मन को, बुद्धि को आराम देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि योग करना और कोई भी एक्सरसाइज करना. So I think under the name of consistency, because the internet is always telling you be consistent, every day hit the gym, do this, do that. I think people are not understanding what is their routine like before they even get consistent. So I know the number of deaths have been increasing like crazy. Gym में जो लोग मतलब गए हैं या sudden deaths जो बढ़ रहे हैं. So I remember somebody who I know, like जिसका death हुआ, and then the thing was कि already you're working till late night, and then your routine is नहीं मैं 6 बजे I will hit the gym, because consistent रहना है. But people are not seeing कि तुम 3 बजे सोए हो, तुमने क्या खाना खाया है first, you know, that one dinner that you've had last night, Yeah. you've had alcohol, and then the next day under the name of consistency you're going to the gym or you're going to that workout. So nobody is talking, मतलब वो एक ये हो गया है, सोशल मीडिया ने Trend. बोल दिया है कि It is happening because they want to show it on the social media. कि देखो मैं रात में 3 बजे सो के 6 बजे उठ रहा हूँ और फिर भी Yeah. एक आध दिन ठीक है. इट इज, अगर आप सी एज आई सेड कि इट इज रियली इम्पोर्टेंट दैट यू स्लीप ऑन टाइम. एंड आई टेल दिस टू एवरीवन कि डिसिप्लिन इज नॉट गेटिंग अप अर्ली, इट इज स्लीपिंग ऑन टाइम. हाँ, सो आप नियम, दिस इज वेयर इट कम्स. Yeah. नियम, जिंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए. आप 3 बजे उठ के काम कीजिए ना. 3 बजे तक जगने की क्या जरूरत है? 9 बजे सो जाइए, 3 बजे तक 6 घंटे की नींद हो जाती है. अच्छा काम होगा. ब्रह्म मुहूर्त पे उठना भी चाहिए. सो आप 3 बजे उठिए, 6 बजे, एंड अगेन नॉट एम्प्टी स्टमक. सो द वन पॉइंट दैट यू सेड कि रात में खाते हैं और फिर ऐसे ही एम्प्टी स्टमक आएंगे. When it comes to practicing advanced kriyas and pranayam, yes, I would suggest you have to certain kriyas you have to do empty stomach. But when it comes to practicing yoga,
मैं हर एक को बताता हूँ कि 45 मिनट्स 1 आवर पहले एक छोटा सा केला, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स और 1 कप दूध, ये होना ही चाहिए। और जो भी आप पोस्ट वर्कआउट खाना चाहते हो साथ में लेके आइए, तुरंत एक्सरसाइज के बाद वो होना चाहिए। वो आई थॉट लाइक सुबह-सुबह अगर योग कर रहे हैं तो कुछ खाना नहीं है, लाइक एम्प्टी ऐसे नहीं, यू आर पनिशिंग योरसेल्फ बाय नॉट डूइंग इट, बाय नॉट ईटिंग प्रॉपर्ली। दैट्स व्हाट आई सेड। हार्मनिंग माय बॉडी। Yes, because insulin levels are spiking, sugar level is getting low. आप जब भी योग कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो तो इंसुलिन लेवल आर स्पाइकिंग, शुगर लेवल्स आर गेटिंग लो। और वो एक इससे भी ज़्यादा हो गया, लिमिट से भी कम हो गया शुगर, तो क्या होगा, यू विल फील डिजी, यू विल फेंट आउट। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू नीड टू अ प्रॉपर डाइटिशियन, यू नीड टू अवर प्रॉपर कोच, या एंड ऑल्सो इफ यू हैव एंजाइटी इश्यूज, ये सब करने के बाद भी यू नीड टू हैव अ प्रॉपर काउंसलर। And one very interesting, before I get to the coach part, when you spoke about niyam, I remember when I joined class, you kept saying that, fix a time to do the class, show up at 1 hour. मतलब कोई भी एक time choose करो and keep coming and doing it consistently. So you focus a lot on discipline. So how is niyam, like what is the importance of niyam in our... How is it possible to achieve anything great without a discipline? It is not, right? We have seen Virat Kohli or many legends like him. आप देखिए उनका लाइफस्टाइल कितना क्लीन है और कितना डिसिप्लिन्ड है। वो डिसिप्लिन के वजह से ही इज परफॉर्मिंग दैट मच, है ना? उतना जो ग्रेटनेस आया है, ये विदाउट डिसिप्लिन नहीं आ सकता। सो ऐसे कई बार हुआ है कि रात रात भर मुझे भी काम होता था, लेकिन मैं सुबह मैंने किया है, बट आई वॉज दैट मच क्रेजी कि नहीं, मुझे करना है बिकॉज मेरा ये इट वॉज अ वे ऑफ अर्निंग फॉर मी। ये जो है, मैं बाकी भी मैं काम करता था, लेकिन जब तक यहाँ पे सेटल नहीं हुआ था मैंने भी ये किया है, लेकिन ये कभी कभी ही किया है। ओके, सो स्लीपिंग ऑन टाइम इज इम्पोर्टेंट, गेटिंग अप अर्ली इज इम्पोर्टेंट। और एज आई सेड कि 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करके योग नहीं सदता, साध नहीं सकते, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ओके, वो एक आवर जो है वो सिर्फ फिजिकली आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। और मैं सबको बोलता हूँ कि हंटर लेके मैं बैठा हूँ आपके पीछे, आप 1 घंटा करोगे ही, लेकिन खुद का डिसिप्लिन कब बिल्ड करोगे? अगर मैं आज क्लास को नहीं जाना है मुझे, तो 1 घंटा कर पाओगे प्रैक्टिस ऑन योर ओन? सेल्फ प्रैक्टिस का डिसिप्लिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप बाहर कहीं गए हो, क्लास में नहीं आ पाते हो, तो कैन यू डू इट? यू विल स्किप इट डेफिनेटली, विच इज व्हाई यू हैव टू हैव नियम। It's like 1 hour of yoga, but 23 hours आप क्या कर रहे क्या हो कर रहे बाकी का, that also That really also matters. because Of that course. is also the yogic way. हाँ, मतलब वो और एक थिंग मैंने ये देखा है कि अरे मैं योग करता हूँ, मैं जिम करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, और मैं रात में बहुत दारू भी पीऊँगा, मैं नॉनवेज भी खाऊँगा, और अरे ये मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इतना एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं इतना ये कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे। ऐसे नहीं होता। अगर आपको ये चाहिए तो ये एक चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी। और वैसे भी दारू नॉनवेज अच्छी बात है ही नहीं, और वो आप सब कर रहे हो। देखिए, ये इसमें कभी कभार आई वुड से ठीक नहीं है, फिर भी आपको है आदत, तो once in a 3 months 6 months is okay, it's fine. Otherwise don't even touch it, don't even think about it. लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि नॉनवेज बहुत खाना है, बहुत दारू पीनी है, इसके लिए यहाँ के एक्सरसाइज करेंगे। सो अगेन इट इज पनिशमेंट फॉर योर बॉडी। या इट कैनॉट गो हैंड इन हैंड। ये अगर आपको पाना है तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा। So when you were talking about niyam, ये भी मैंने एक जगह पे सुना है that when you first go for therapy, any kind of therapy, the first thing the counselor will always tell you that you need to fix your routine. Whatever you're feeling, may it be anxiety, may it be whatever that turmoil, sadness, depression, anger, कुछ भी हो, the first thing they tell you to keep your mental state in peace, in mental state in check, is that you fix your routine. Fix your routine. Yeah, and start doing And also fix your eating habits. Yeah. Eating right on time is also important. So I'll talk briefly about this key, why it is important to fix your routine when it comes to sleeping and eating. So most of the youngsters that I have been coming across, रात में 10 बजे 11 बजे खाना खा रहे हैं, वो भी पिज़्ज़ा और बर्गर। नॉट से वीकेंड पे ठीक है, लेकिन इतने रात में इतने लेट खाने की वजह से भी उनको, और continuously because of eating bakery products, they are having the problem of PCOD and PCOS. Oh. Because not ये बेकरी प्रोडक्ट तो है ही, और
लेट नाइट तक जागना और But how is late night, मतलब eating can be affecting your periods? डाइजेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है ना. यू विल ईट एंड यू विल गेट ऑन द बेड इमीडिएटली. सो अगेन कफ दोषा इज गोइंग टू इंक्रीज. Okay. So this cycle starts. So it's correlated. It is all correlated. Okay. This is why it is said ना कि शतपावली है हमारे खाना खाने के बाद शतपावली कि 100 steps you Oh, have to after every meal? walk after every meal walk 100 steps and minimum 1 घंटा 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए from your meal. मैक्सिमम 2-2.5 घंटे रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए आपके मील में और सोने के दरमियान. Okay. Hmm. Wow. And I think हम लोग एक ही चीज पे फोकस, एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करते हैं instead of all these other things in our मैं बोलता हूँ ना कि 6 पैक कम्स फ्रॉम अ किचन कि यू हैव टू ईट क्लीन. कुछ भी खाओगे और मैं एक्सरसाइज करूंगा ठीक हो जाऊंगा मसल बनेगा, नहीं, ऐसे नहीं है. आर यू ईटिंग प्रॉपरली. उसके बाद में डाइट, उसका पार्ट सप्लीमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं. योर रूटीन अगेन इट गेट बैक्स टू नियमा. अगर डिसिप्लिन है लाइफ में तो कुछ भी अचीव करना ईजी है. अभी आप देखिए कि अगर खाना क्यों इम्पोर्टेंट है. किसी को वात दोष है और आप सैलेड्स पे सैलेड्स खा रहे हो, डेफिनेटली गैस्ट्रिक इश्यूज होने वाले हैं. हाँ, बट ऐसे लगता है कि हेल्दी है, राइट? हेल्दी है, ये किसके लिए हेल्दी है. इसीलिए मैं एज आई सेड कि हैव अ प्रॉपर डाइटिशियन हु नोज यू वेल. कंसल्ट अ प्रॉपर फिजिशियन और डॉक्टर और एनी, मतलब उसमें जो जानकारी रखता है. एसिडिटी है आपको और लेट नाइट में जाके वो भी नॉनवेज आप खा रहे हो, इट्स नॉट गुड. ओके, और आप और बाकी चीज़ें भी कर रहे हो, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ये सब आप कर रहे हो और एसिडिटी है, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बर्न यू फ्रॉम इनसाइड. ठीक है. So eating according to your doshas is very इट इज important. रियली इम्पोर्टेंट. understand. सो वात पित्त और कफ. सो कफ दोष एज आई सेड कि 20 ऐसे प्रॉब्लम्स डिसीजेस बताए गए हैं उनके लिए. पित्त दोष के लिए 40 और वात दोष के लिए सबसे ज़्यादा है. दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट दे ईट. 80 के करीब उसके लिए ये बताए गए हैं कि ऐसा वर्णन है आयुर्वेद शास्त्र में. इतने प्रॉब्लम्स उनको डिसीजेस होने की संभावनाएं हैं. जरूरी नहीं कि होगा, लेकिन हो सकता है. या मतलब काफी जनरलाइजेशंस पे चल रही है चीजें कि सबने सैलेड खाना चाहिए, सबने सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सबसे डाइट ये चीज सबने फॉलो करना follow चाहिए. करना चाहिए. बट इट इज सो मच टू डू विद पर्सनल, आपका एनाटॉमी क्या नाड़ी है दोषा, एंड व्हाट exactly. इज योर दोषा एग्जैक्टली एंड हाउ यू शुड बी. और दोषा माने फॉल्ट नहीं, इट्स अ ट्रेट, इट्स काइंड ऑफ टाइप. ओके, दोष में जो मराठी में अब ये समझेंगे, दोष इंग्लिश में वो हो जाएगा फॉल्ट. इट्स नॉट फॉल्ट, दोष एज इट्स अ ट्रेट और Trait, yeah. हाँ. कि हाउ योर बॉडी इज मेड अप फ्रॉम बेसिकली. सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि बहुत सारे जनरलाइजेशंस पे चीज़ें चल रही है. लोग एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं एंड सब अपने पे अप्लाई कर रहे हैं कि सैलेड खाओ, सूर्य नमस्कार करो, डू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड नोबडी इज सीइंग what is their anatomy or understanding it. So I remember one of my example that I want to share is कि एक साल पहले when people are like pranayam in the morning, get up and do pranayam, and I was also one of the people who was very motivated to start my day with pranayam. And I remember doing Bhastrika because I thought it will help me with my gut and all of that. तो मैंने चालू किया भस्त्रिका करना and I ended up having very bad acidity. Like till the end of the day, I had a very bad headache. I had to take an acidity pill. And उसके बाद मैंने फिर सोचा कि maybe this is not for me. वो समझा मुझे थोड़ा बहुत. And that my mom had to tell me कहीं ना कहीं कि you need to stop doing भस्त्रिका. But I think ये पता ही नहीं है लोगों को. People start doing pranayam also like this only. सो प्राणायाम इट इज नॉट फॉर, ये सबके लिए नहीं है प्राणायाम. ओके, सो हठयोग प्रदीपिका में ये डिस्क्लेमर दिया है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवत्. प्राणायाम का अगर अभ्यास करोगे तो सर्व रोगों का नाश हो जाएगा. अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोगस्य संभवः. गलत तरीके से अभ्यास करते हो, जैसे कि आपने बताया एसिडिटी. अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोगस्य संभवः. जो आपको नहीं है वो भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. सो मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आए थे कि हम 20-20 मिनट कपालभाति करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन फिर भी एंजियोप्लास्टी हो गई. फिर क्यों, ऐसे क्यों हुआ? कि यू हैव टू हैव अ गुरु फर्स्ट. आपको गुरु के सामने अगर हठयोग प्रदीपिका आप पढ़ोगे
तो स्वात्माराम मुनि ने ये कहा है कि ये सब मैं बता रहा हूँ, मेरा गाइडलाइन, बट डू इट इन फ्रंट ऑफ योर गुरु। आपके गुरु के सामने। अभी आपने जैसे बोला यूट्यूब पे देख के सब करते हैं, सी यूट्यूब पे जो वीडियोस दिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, दीज आर प्रो एथलीट्स, दे आर समथिंग विच इज वाई दे आर शोइंग इट। आप अगर यूट्यूब पे देख के करते हो, लेकिन आपको पता, अगर करेक्शन करने वाला ही कोई नहीं है तो क्या करोगे? आपको पता ही नहीं है अगर आप गलत तरीके से प्राणायाम कर रहे हो तो। और सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि प्राणायाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू मास्टर द बेसिक आसन फर्स्ट, फंडामेंटल्स, बिकॉज भस्त्रिका, एज यू सेड, भस्त्रिका इज टू बी प्रैक्टिस्ड इन पद्मासन ओनली। ऐसा नियम है हठ योग प्रदीपिका में। अगर पद्मासन, वो भी आसन सिद्धि द्वारा, मतलब 4 घंटे अगर एक आसन में बैठते हो आप, तो आसन सिद्धि उसे बोलते हैं। और ऐसे भस्त्रिका कैसे की जाती है कि 4 घंटे दिन में 4 बार। बट मुझे लगता था दैट आसन आप कर रहे हो तो वो फिजिकल पे है, और मुझे लगता था प्राणायाम इज अ डिफरेंट सेक्शन, लेकिन आप बोल रहे हो पहले आप वो आसन मास्टर करो, मास्टर करो, देन डू प्राणायाम। लंग्स की भी कैपेसिटी होनी चाहिए ना उतनी। Okay, okay. अगर कोई ऐसा दिखा दे अभी 1 घंटा भस्त्रिका करके फेंट हो जाएगा, चक्कर आके गिर जाएगा, ऐसे है बहुत कम लोग हैं। So you first get your body गेट prepared. योर बॉडी प्रिपेयर्ड फर्स्ट, कंडीशनिंग होना चाहिए। अगर भस्त्रिका करना है अभी ये क्लाइमेट में, ड्राई वेदर में आप भस्त्रिका कर रहे हो, तो घृतनस से करना जरूरी है। उसके पहले अंदर नाक में घी छोड़ना जरूरी है, नहीं तो you'll start coughing, ड्राइनेस आ जाएगा, ड्राइनेस इन योर ईयर्स, ड्राइनेस इन योर आईज, ड्राइनेस इन योर थ्रोट, ड्राइनेस इन योर नोज। व्हाट आर यू गोना डू? विच इज वाई यू हैव टू हैव अ गुरु। ओके, सो भस्त्रिका और कपालभाति, दिस इज नॉट अ प्राणायाम, दिस इज शुद्धि क्रिया। ओके, एंड दैट टू इट इज नॉट टू बी प्रैक्टिस्ड बाय एवरीवन। फॉर एन एग्जांपल, अभी आपने बोला था कि 40s के बाद, 50s के बाद ये सब करना चाहिए। लेट्स सी, अगर आपका एब्डोमिनल वॉल वीक है एंड यू आर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, हार्निया हो गया तो कौन जिम्मेदार? हो सकता है, ऐसे केसेस देखे हैं मैंने कि गलत तरीके से प्राणायाम किया है, हार्निया का इश्यूज, बायलैटरल हार्निया हो गया। सो ये पहले एज में ही, व्हेन यंग एज में ही, टीन एज में ही ये शुरू हो रहा है। ये इसीलिए गुरुकुल पद्धति में, वो गुरुकुल परंपरा में पहले ही योग इंट्रोड्यूस होता था कि बाय द टाइम ऑफ यू रीच 60 वानप्रस्थाश्रम, योगी एज इन कंडीशनिंग हो चुका था आपका। वाओ, आई मीन इट्स ब्यूटीफुल कि कितनी छोटी छोटी चीजें और कितने अच्छे से इंटरलिंक की है। इंटेल एंड एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन, आई थिंक कोई भी वर्कआउट में टुडे, कोई भी और दूसरा वर्कआउट, लाइक से यू डू कार्डियो, यू डू क्रॉसफिट, नोबडी इज लुकिंग एट दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ही तुम्हारा, आपका एब्डोमेन कैसा है, आपके दोषास क्या है, क्या है? आपने क्लेंजिंग किया है कि नहीं, एंड देन क्या इफेक्ट हो रहा है। सो आई लाइक हाउ इंट्रिकेट योग इज, एंड इट वर्क्स ऑन सो मेनी फसेट्स एट द सेम टाइम। इट्स ब्यूटिफुल। एंड देन वहां पे आता है कि एक अच्छा गुरु होना गुरु कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसको भी ये पता होना होना चाहिए चाहिए कि क्या किस शिष्य को क्या प्राणायाम सिखाना है। ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि जनरलाइज नहीं कर सकते प्राणायाम भी। सो बेसिक वर्जन ऑफ प्राणायाम इज, आप 4 घंटे बैठ सकते हो, तो जैसे मैंने बताया अभी कि, और वो क्यों करना है प्राणायाम, तो ऐसा वर्णन है कि चले वाते चले चित्ते, निश्चले निश्चलम भवत। सो नाउ विल गेट बैक इनटू मेंटल पीस, कि चले वाते, वात एज इन प्राण, जितना आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो उतने ज़्यादा थॉट्स आएंगे, और जितना स्लोली स्टेडीली ब्रेथ कर रहे हो आप, उतना कम ख्याल आएंगे, उतने कम विचार आएंगे। सो you'll be able to reach, get that meditative state so easily. So pranayam, it is not for physical benefits. So it works on your chakras, kundalinis, and इसका तो वर्णन है ही ऐसा भस्त्रिका प्राणायाम का कि वात पित्त श्लेष्महरम शरीराग्नि विवर्धनम। यू ओनली सेड ना कि एसिडिटी बढ़ गई। वात पित्त कफ, त्रिदोष शांत होते हैं, लेकिन पंचमहाभौतिक अग्नि जो है उसका तेज बढ़ जाता है। सो एज इन फिजिकली अगर आप तैयार नहीं हो तो इट इज गोइंग टू किल यू फ्रॉम इनसाइड, इट इज गोइंग टू बर्न यू फ्रॉम इनसाइड, इट इज लाइक प्लेइंग विद द फायर। ओके, सो गुरु के सामने जो भी करना है, गुरु के सामने बैठ के कीजिए No, बस। very interesting. And I think a lot of them is going to help so many people जो ऐसे ग्रुप में कर रहे हैं कहीं ना कहीं, हाँ। एंड एवरीबडी थिंक्स कुछ नहीं होगा डूइंग इतना टाइम, मतलब प्राणायाम 20 मिनट कर लिया तो कुछ नहीं तो हो रहा। why are they not getting the proper benefits of it?
एंड आई थिंक अभी तक फिजिकल बेनिफिट्स ही पता थे, मतलब बहुत सारे लोग मेंटल पे तो बात वो भी जाते नहीं हैं। नहीं वो भी नहीं मिल रहा है ना ठीक से, हाँ क्योंकि उतना ड्यूरेशन आप नहीं कर सकते हो, या नहीं हो पाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, चैलेंज है। 1-1.5 घंटा, कोई 1.5 घंटा कोई दिखा दे नॉन स्टॉप करके भस्त्रिका प्राणायाम, या नहीं हो सकता। So honestly, coming to your class, after I came to your class, I got to know कि first स्नेहा आसन करो आसन करो। and फिर प्राणायाम पे चलते करके, वो वहाँ पे मुझे पता चला कि इट्स नॉट। तो और ऐसा भी है कि तो फिर क्या करेंगे? देयर आर सम बेसिक प्राणायाम्स, आई वुडंट कॉल इट अ प्राणायाम। सो व्हेन इट इज अ नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, once you add retentions into it, antar kumbhak, bahir kumbhak, keval kumbhak, so it becomes pranayam. ओके So inhale through the left, exhale through the right. चंद्र वेदन कोई भी कभी भी कर सकता है। ओके 5 से 7 सेकंड का इनहेलेशन, 5 से 7 सेकंड का एक्सहेलेशन, दैट्स इट। सिर्फ यही करके यू विल बी एबल टू अचीव एनीथिंग। पीस ऑफ माइंड चाहिए, ओके, रात में सोने से पहले अच्छी नींद चाहिए, चंद्र वेदन कीजिए। ओके, फोकस चाहिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता, चंद्र वेदन कीजिए। ये बेसिक कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जो दिए गए, वो फॉलो कीजिए आप। ओके हाँ, वो 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, धीरे अभ्यास, अगेन अभ्यास होना चाहिए और नियम भी होना चाहिए। ओके, अभ्यास करने का नियम होना चाहिए। एज इन मैं सबसे बोलता हूँ कि अब आप 6 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठो, स्नान ध्यान संध्या करके 5:30 बजे भले 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, लेकिन वो तभी उस सेम टाइम सेम जगह पे बैठ के होना चाहिए। उसे तब बोलते हैं, उसे अभ्यास बोला जाता है। तब यू विल गेन समथिंग, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली हैपनिंग विथ यू। दैट रियलाइजेशन विल कम टू यू कि अरे ओके, ये नहीं, ये होना चाहिए जिंदगी में, ये नहीं। यू विल गेट क्लियरिटी, यू विल गेट एक्सेप्टेंस आफ्टर द प्रैक्टिसिंग दिस ब्रीदिंग टेक्निक, चंद्रवेदन बट इज पर्टिकुलरली। इट पॉसिबल टू एक्चुअली लिव द योगी लाइफ स्टेइंग विथ सो मेनी थिंग्स अराउंड अस, लाइक बोलते उतना टाइम, उतना फोकस, लाइक लोग बोलते हैं कि उसके लिए फिर हिमालयास चले जाओ क्योंकि आपको अगर सब करना है तो, बट डू यू थिंक इट्स पॉसिबल कि मैं यहाँ रह के ये सब चीज़ कर सकती हूँ? क्यों नहीं हो सकता? सी अगेन इट इज अबाउट प्रायोरिटी, आपको क्या चाहिए। अगर आपका मन पैसे में लगा है, प्रमोशन में लगा है, कुछ बनने में लगा है, तो वो बन जाइए। लेकिन मैं सबसे बोलता हूँ कि प्रैक्टिस योग टू बिकम अ परफेक्ट बॉडी बिल्डर, प्रैक्टिस योग टू बिकम सक्सेसफुल क्रिकेटर। तो योग वैसे ही रहेगा। सो मेक योग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मेक इट योर लाइफस्टाइल। हम्म ओके, आप पहले योग को ये करना सीखिए, योग कीजिए, और उसके बाद प्रिजुडाइज माइंडसेट से नहीं होगा जी। विदाउट प्रैक्टिसिंग योग यू कैन नॉट से कि नहीं ये रिटायरमेंट में करेंगे, इससे लिबरेशन आ जाएगा, इससे मुक्ति आ जाएगी ना। इट इज़ नॉट दैट इजी। अगर मुक्ति पाना इतना इजी होता तो सभी लोग पद्मासन लगा के बैठ गए होते, है ना। कोई भी किसी को नहीं करना है ये सब जो करना है। एवरीबडी अपने क्लास में भी आते हैं, ये सब मेरे साथ क्यों चल रहा है, मैं ये क्यों जॉब कर रही हूँ। मतलब छोड़ दे, नहीं हो सकता ना, बैठ जाओ घर पे। नहीं हो सकता, बिकॉज यू हैव टू अर्न। ये पेट कैसे चलेगा, ये घर कैसे चलेगा, गाड़ी कैसे चलेगी। सो सब में रह के कहीं में ना, डिटैचमेंट, ये आपको योग देगा कि आप हो लेकिन अपेक्षा नहीं है। जो मिल रहा है वो एक्सेप्ट किया, आगे बढ़े। हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप काम कर सकते हो, उसमें आप डिटैच रह के काम कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि ईश्वर प्रणिधाना, कि आप जो भी कर रहे हो आपके ईश्वर को, आपके जो आराध्य है उसको अर्पण कर दो। ईश्वर प्रणिधान, यही तो योग है कि सब में यहाँ पे रह के भी योग साध सकते हैं। हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को लगता है सब छोड़ छाड़ के छोड़- आई हैव टू स्टार्ट, मतलब it seems to be very difficult, to be very honest, for a, it is about so much that it might seem a very difficult path to accept. हाँ, बिकॉज प्रिजुडाइज्ड है ना, Yeah. किसी ने पढ़ा नहीं है इसके बारे में। और पढ़ा नहीं है वो भी ठीक है, किसी के पास अच्छा गुरु भी नहीं मिलता है किसी को, Yeah. तो गुरु प्राप्ति भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना योग करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रॉपर एक अच्छा गुरु होना। तो आप जो भी साधना करते हो गुरु प्राप्ति के लिए कीजिए। एक बार गुरु प्राप्ति हो गई तो फिर योग Okay. अपने आप एक साधे सब साधे एक होए। एक चीज साध लीजिए कि गुरु कृपा। So now that we've spoken about asana, which is the physical aspect, pranayama, which works on the mental aspect, there was one very interesting thing which I got to know about yoga, that is mudras also. And they have such a beautiful effect on your body. So what are these mudras exactly? Mudra as in gestures. Okay. By using your body, you do some gestures.
That is the meaning of mudra. Okay. But like when I'm doing a mudra, I thought they were like the hand gestures, but they looked like an asan when I did it with you. Yes. And it also felt like कि मतलब मुझे लगता था वो आसन ही कर रही हूँ, but you said that no, it is not an asan, it is a mudra. Don't call it an asan Asan. somewhere or the other. हाँ. So I wanted to know that something so small, like एक आसन जब मैं मुद्रा कर रही थी, काफी simple मतलब छोटा सा वो ये था एक alignment था. How can it have such a big effect on the body? हाँ. So mudra works on your endocrine system majorly. If Okay. you ask the physical benefit of it, so in asan, asan works on your muscular system. Asan, while holding asan, you are breathing continuously. You are taking deep breaths. But while holding mudra, you are in kumbhaka, either in Jalandhar Bandha and Antar Kumbhak. Okay, so it is the way of redirecting the prana where you want it to. Okay. Okay, so there are type of mudras. Mano mudra, which is Khechari, then Shambhavi, and okay, then Bandha mudra. So Jalandhar Bandha, you must have seen that we saw the belly inside, and it also works on your perineal region. The Bandha mudras. Yeah, I do a lot of breath holds Breath during holds, mudra. Yeah. Bahir Kumbhak, Antar Kumbhak, and the Keval Kumbhak. Okay, and then the Adhara mudra, which works on your lower part of the body. Okay. Okay, then Vajroli, and then Mahamudra. Mahamudra, I would suggest please practice it again under able guidance. For all the females, it is really needed. Okay, so it works on your thyroid glands, it works on your adrenal glands. Okay, so it will also help you with the stress management, and most important thing is it will help you with the PCOD or PCOS. Oh. तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मुद्रा का. So अगर मैं Practice under able guidance. you need to have a guidance. Of course, because कुंभक का भी प्रमाण पता होना चाहिए कितना होल्ड करवाना है. अभी कोई नया आता है तो उसे 5 सेकंड का ही बोलता हूँ कि नहीं 5 सेकंड करो. अगर वो भी नहीं हो रहा है तो बहिर कुंभक में इनिशियली गेट यूज टू इट फर्स्ट. क्योंकि अगर किसी को बोलूँगा, ऐसे हुआ भी है कि किसी से कभी किया नहीं था, प्राणायाम नहीं, ये नहीं, और डायरेक्ट आके बैठ गए, नहीं मुद्रा करना है, तो एंजाइटी अटैक आ गया, चक्कर आ गया. सो ये भी हो सकता है. Okay. इसीलिए कि प्रैक्टिस इट अंडर एबल गाइडेंस एंड ग्रेजुअली डू इट. ग्रेजुअली प्रैक्टिस इट, धीरे 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 करके आप आगे जाओ. Okay, so if I am, for example, if somebody is having thyroid, for example, or agar in the entire day I don't have time to do proper yoga, like a Yeah. 1 hour yoga class, can I just do mudras at the starting of my Yes. day? And 10 minutes, spend 10 minutes only. You need to have 10 minutes to practice mudras. okay, एक ही मुद्रा, महामुद्रा प्रैक्टिस कीजिए या फिर वज्रोली मुद्रा प्रैक्टिस कीजिए, बस. okay, सिर्फ डाइजेस्टिव के लिए अगर पूछोगे तो अपना महामुद्रा, ठीक है, उड्डयन, जालंधर और महाबंधा जिसे बोलते हैं वो. ठीक है, यू कंट्रैक्ट योर थ्रोट, you push your chin against your jugular notch, you pull your rectum perineal region upwards, and you suck your belly in. so this is for digestion. For digestion, physical benefits, yes, for digestion and your stamina. Okay, So for the male fertility, it will help you also with the fertility or the stamina issues, erectile dysfunction. So Vajroli mudra is also beneficial for them. okay, Okay, so you hold Naukasan like position. It is similar to Naukasan, and then push your chin against you have to practice it daily for 10 to 15 minutes. It is really difficult. It is not that easy, but yes, it can help you with the erectile dysfunction, fertility issue. And for the female, it becomes Sahajoli mudra. So you pull your groin inwards and hold it by holding Jalandhar Bandha and Naukasan. so Sajoli is for what? But for Female. women, but what? For the same thing. For the same thing. Okay, for fertility issues. Fertility issue, PCOD, PCOS. Again, as I said, it is related to your endocrine system. Okay, And if you ask spiritual benefits, so महामुद्रा के बारे में ऐसा बताया गया है कि 12 साल अगर आप महामुद्रा करते हो तो अष्ट सिद्धि मिल जाएंगी. okay, सो मैं ये बोलता हूँ कि छोड़ो वो अष्ट सिद्धि वगैरह, बहुत दूर की बात है. आरोग्य ये मुख्य सिद्धि है. योर हेल्थ इज द बेस्ट सिद्धि यू कैन हैव. If you have proper health, if you are healthy, you will be able to do anything. Okay. so I think it is actually very useful कि अगर आप मुद्रास भी दिन में एक
if you can do some mudra every day, I think it will really help you with एक your. ही मुद्रा का अभ्यास कीजिए। अच्छा, हाँ, okay. मैंने बोला ना एक साधे सब सरे, एक मुद्रा, बस एक ही चीज का अभ्यास कीजिए बस, 1000 चीजें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, And it will change your entire. एवरीथिंग। Okay. हाँ, और Interesting. the similarly bandha mudra is again the prerequisite for samadhi, and Bandha to mudra. bandha mudra, this also you'll be able to awaken your kundalini. With the vajroli mudra, yes, similar thing can be done with the vajroli mudra. शिव सूत्र शिव संहिता में भी वज्रली मुद्रा का उल्लेख आया है। इतना इम्पोर्टेंट वज्रली मुद्रा है। You just spoke about the Kundalini, and it grabbed my curiosity because I think it's a buzzword. And सबको कुंडलिनी अवेकन करना है, because they say that your spirituality, मतलब जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है from rising your कुंडलिनी. तो what is कुंडलिनी exactly? And ये अवेकन हो सकता है क्या, मतलब how, what is the process? कुंडलिनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 चक्रास फ्रॉम मूलाधार टू सहस्त्रार। Okay. ये तो सभी को पता है, लेकिन विदाउट गुरु इट इज नॉट पॉसिबल। ये कोई भी आजकल आके बोल रहा है ना कि आके सामने दिखा दे कि ये मैंने चक्र जागृत कर दिया है, इट इज नॉट पॉसिबल। Okay. कि आपकी कंडीशनिंग, बॉडी की, माइंड की कंडीशनिंग, स्पिरिट की कंडीशनिंग होनी चाहिए उतनी। ओके, So I can't directly do a Kundalini awakening कोई because भी नहीं कर सकता। because every जैसे classes you are like- अवतार, like meditations है हाँ। and ऐसी सब चीजें सिखा रहे लोग। मेडिटेशन ठीक है, टू एन एक्सटेंड गाइडेड मेडिटेशन हो सकता है, लेकिन कुंडलिनी अवेकनिंग इट इज नॉट पॉसिबल। लोग पागल हो गए। ओके, सो आपको एक्सेस ही नहीं है उन चक्रों के लिए। दैट इज अ दोस चक्रास आर लॉक प्रॉपरली। वो Okay. सरपंट बोलते हैं, उसका शेप कैसा है, सर्प जैसे। तो गुरु ही आके अपने शक्ति से वो ताला खोल सकता, Okay. बाकी कोई नहीं उसमें कर सकता। अगर आप अवतार हो तो मे भी, लेकिन अवतार भी हो तो उन्होंने देखिए गुरु किया है। आप कोई भी संत महात्मा कितने भी साल पीछे जाइए, आप उन्होंने पहला काम जब ये मनुष्य देह में आए हैं तो उन्होंने गुरु ढूंढना है। उनको पता नहीं था वो अवतार है, वो प्रोटोकॉल है ना। अभी रिसेंट टाइम के संत देख लिए, ज्ञानेश्वर महाराज, गौराम महाराज, गोंदोलेकर महाराज अपने, उन्होंने गुरु किया है। या आप देखिए रामकृष्ण, कृष्ण भी, भगवान कृष्ण भी गए थे सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, उन्होंने भी गुरु किया है। प्रभु रामचंद्र भी, वशिष्ठ उनके गुरु है। योग वासिष्ठ तो उसी के ऊपर लिखा है पूरा, उसमें भी योग का ये आता है, वर्णन आता है कई जगह पे। तो विदाउट गुरु इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो कोई भी बोल रहा है, मैं आपको बोलता हूँ ये फेंक रहे हैं सब, इट इज ऑल लाइज। कोई भी आके कुंडलिनी का चक्र टच करके जागरूक करना नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। और इस चक्कर में मेरे सभी से प्रार्थना है कि इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, Yeah. छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपके शिक्षक आपसे कहेंगे उतना ही फॉलो कीजिए बस। एंड अगेन एज आई ऑलवेज से कि इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। कुंडलिनी अवेकनिंग इज अ प्रोसेस, इट इज़ नॉट एन इवेंट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। कोई भी अगर बोलेगा कि नहीं हो सकता, या पीपल थिंक मतलब मैंने ये क्लास कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो शायद थोड़ा प्रैक्टिस से मेरा हो गया, कुछ तो हो रहा है टाइप। सो आते भी है ऐसे लोग, मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो गया है, ये हो गया। अगर एक चक्र जागृत करने के लिए आपको कम से कम 40 से 50 साल चाहिए। अगर जागृत हो गया तो यहाँ दिखोगे नहीं आप। ओके कुंडलिनी अवेकन है तो यहाँ पे कर क्या रहे हो, यू विल डिसइंटीग्रेट। ओके आप समाधि नहीं, मुक्ति की अवस्था में आप चले जाओगे। एक जागृत हो गया तो खत्म। गॉट इट। हम्म, या सो आई थिंक पीपल शुड नॉट फॉर। ये सब पैसे कमाने का ये है। अब सिंपल जो क्रिया है, जो योग है, और उसके बाद प्राणायाम जो है वो फॉलो कीजिए, दैट्स इनफ। उतना काफी। सो डोंट गेट इनटू कुंडलिनी गाइस, हाँ, दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन कि गुरु कृपा वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, सो आई हैव अ गुरु व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु कृपा है तो मैंने जैसे बोला कि हठयोग प्रदीपिका में वर्णन है कि वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुंडलिनी। और एक ऐसा भी वर्णन उसमें आता है कि गुरु अपनी शिष्य की कुंडलिनी हाथ से उठा के सहस्त्रार चक्र में लेके जा रहा है उसकी, ये भी वर्णन है उसका। सो लेकिन उतना पावरफुल, उतना ताकतवर गुरु चाहिए। या ठीक है, तो एनीवे द पॉइंट इज प्रॉपर गुरु, उसको ढूंढिए, वो जैसे बोले वैसे वो मार्ग पे चलिए,
Yeah, so don't सब साथ है। yeah, don't experiment things at home, guys. You need a guru or somebody who is knowledgeable enough about yoga to start your journey. So yeah, very एक important illusions का message. पार्ट है, एक illusions का पार्ट कि हाँ, आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेरा चक्र जागृत हो गया है, दिस माइंड विल प्ले गेम्स ऑन यू कि मुझे ये दर्शन हो गया, मुझे उसके दर्शन हो गए। ये मन के प्रक्षेपण होते हैं सब। आपको ऐसा ध्यान में आप बैठे हो और लगता है अरे नहीं, हमारे पास भी आते हैं ऐसे कई विद्यार्थी, सर मुझे ये इसका दर्शन हो गया, मेरे सामने ये संत आ गए, ये महात्मा आ गए, ये भगवान आ गए। सो दीज़ आर ऑल इल्यूजन्स। सो आपको बताने के लिए भी गुरु चाहिए ये कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हो, ये जो दर्शन आपको हो रहे हैं, ये जो अनुभव आपको आ रहा है, ये सत्य है या असत्य है? ये बताएगा कौन? yeah. ऐसे पागल हो जाओगे आप कि ऐसे लगेगा भगवान ने मुझे बताया है और So I think very important message for everybody who's watching this podcast. So it's World Yoga Day and काफी सारे myths have been broken here जो लोगों को लगता था, and there are so many questions that people have around yoga, and I think it has been a very insightful podcast. I'm sure a lot of questions have been answered here. So thank you so much for coming on Raw with Sneha, and I'm blessed to have you as a guru who's going to guide me throughout my journey. So thank you so much once again. Well, that was an exciting episode, and I hope all your questions are answered. If you guys still have questions, please drop them in the comments below. And if you loved this episode, do not forget to share it with your loved ones. I hope this episode has motivated you to start your yoga journey. I'm going to see you guys in the next video. Till then, keep rising and embracing in love, and do not forget, I roar you.